لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم یہ بنیں، وہ بنیں، وہ بنیں، وہ بنیں۔ یقیناً سب کچھ بننا چاہیے، لیکن آج میری گزارش آپ سے صرف اتنی ہے کہ ہم سب پہلے انسان بن جائیں، صرف انسان پہلے بن جائیں، کیونکہ ہمیں مسلمان بننے کے لیے، سنی مسلمان بننے کے لیے، قادری مسلمان بننے کے لیے، ولی بننے کے لیے، غوث بننے کے لیے، کتب بننے کے لیے، ابدال بننے کے لیے، سب کچھ بننے کے لیے تو انسان ہی بننے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کچھ بعد میں بنیں گے، پہلے ہمیں انسان بننا ہوگا، اس لیے کہ مسلمان بھی وہی ہوگا جو انسان ہوگا۔ جب ہم انسان ہی نہ بن سکے تو پھر ہم مسلمان کیسے ہوں گے؟ پھر ہم سنی مسلمان کیسے ہوں گے؟ پھر ہم قادری مسلمان کیسے ہوں گے؟ پھر ہم ولی، غوث، کتب اور ابدال کیسے ہوں گے؟ سب سے پہلا سبق تو یہی ہمارے لیے ہے کہ ابھی ہم تو صحیح طور پر انسان بھی نہیں بن سکے، ہمارے اندر انسانیت ہی نہیں ہے۔ جب انسانیت نہ ہوگی تو اسلام کیسے ہوگا؟ جب انسانیت نہ ہوگی تو ایمان کیسے ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ممکن ہے میری اس گفتگو سے کسی کو حیرت بھی ہو سکتی ہے۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی ناک ایک ہے، جس کی آنکھیں دو ہے، جس کے کان دو ہیں، جس کی زبان ایک ہے، جس کے دانت 32 ہے، جس کے 2 ہاتھ ہے، جس کے 2 پیر ہیں، جس کا سر ہے؟ کیا وہ انسان نہیں؟ یاد رکھیں، اگر صرف ناک کی بنیاد پر، صرف آنکھوں کی بنیاد پر، صرف کان کی بنیاد پر، صرف زبان کی بنیاد پر ہم انسان ہو سکتے ہیں تو کیا 2 آنکھیں جانوروں کی نہیں؟ کیا ناک جانوروں کے پاس نہیں؟ کیا کان جانوروں کے پاس نہیں؟ کیا زبان جانوروں کے پاس نہیں؟ دراصل انسان جو انسان ہے وہ اپنے اخلاق کی بنیاد پر ہے، انسان جو انسان ہے وہ اپنی عقل کی بنیاد پر ہے، انسان جو انسان ہے وہ اپنے کردار کی بنیاد پر ہے، انسان جو انسان ہے وہ اپنی اچھائی کی بنیاد پر ہے۔ جس کے پاس اچھائی نہیں وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں، جس کے پاس اخلاق نہیں وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں، جس کے پاس زبان تو ہے لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم اکرام انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم احترام انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر انسان کہلانے والے تو بہت ہے، لیکن کیا ہمارے اندر انسانیت بھی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مقدس کا عنوان صرف ایک ہے۔ دنیا کے اندر بہت سی کتابیں لکھی گئی اور لکھی جاتی رہے گی، لیکن قرآن جیسی کتاب نہ دنیا میں اس سے پہلے آئی اور نہ اس کے بعد آ سکتی ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اب قرآن جیسی کتاب کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ عظیم کتاب جس کا نازل کرنے والا خدا ہے اور جس پر نازل ہوئی وہ بے مثل بے مثال محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نازل کرنے والے سے بہتر کوئی ذات نہیں، جس پر نازل ہوئی اس سے بہتر کسی کی ذات نہیں، اور جو کتاب نازل ہوئی اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ نازل کرنے والے کی شان یہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کی شان یہ ہے وہ کن کہہ کر کائنات کو وجود عطا کرتا ہے۔ نازل کرنے والے کی شان یہ ہے، اس نے کن کہا تو آسمان پیدا ہو گئے، اس نے کن کہا تو زمین پیدا ہو گئی، اس نے کن کہا تو ستاروں کی انجمن سج گئی، اس نے کن کہا تو اتنا بڑا سورج پیدا کیا، اس نے کن کہا تو چمکتا ہوا چاند پیدا کیا، اس نے کن کہا تو درختوں کو پیدا کیا، اس نے کن کہا تو زمین پر سبزے کی چادر بچھا دی۔ ہاں وہی تو ہے جس نے قرآن نازل کیا، وہ مردہ زمین کے اندر جو ہے وہ جب
दाना दबाया जाता है तो वो उस दाने की परवरिश करता है और उसी दाने से कौपलें निकलती है और उसी दाने से एक दाना जमीन में क्या गया उसके जरिए से सैकड़ों हजारों दाने पैदा करता है। वो है जिसने कुरान नाजिल किया है। मेरा अल्लाह जो आसमान से बारिश बरसाता है वही कुरान का नाजिल करने वाला है। वो मेरा रब है जो माँ के पेट में सूरतें बनाता है वही कुरान का नाजिल करने वाला है। हाँ, जो पत्थरों से पानी निकालता है, जो पत्थरों से पत्थरों को फोड़ करके सब्जे पैदा करता है, पत्थरों में पौधे और फूल उगाता है, वो मेरा अल्लाह है जिसने कुरान नाजिल किया है। ऐसी शान वाला है कुरान नाजिल करने वाला। और जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो ऐसा बेमिसाल है कि कुरान नाजिल करने वाले खुदा ने दरख्त तो पैदा किए और दरख्त जमीन से उगाए, और जिस पर नाजिल किया वो इतना बेमिसाल है कि वो इशारा करता है तो दरख्त चल करके उस रसूल के पास आ जाते हैं। वो इतना बेमिसाल रसूल है। नाजिल करने वाला खुदा चांद बनाता है और जिस पर नाजिल किया वो इतना बेमिसाल है कि वो इशारे करके चांद को 2 टुकड़े कर देता है, इशारा करके चांद जोड़ भी देता है। नाजिल करने वाला खुदा सूरज बनाता है और जिस पर नाजिल हुआ वो इतना बेमिसाल है कि इशारा करके सूरज को पलटा लिया करता है। अल्लाहु अकबर। जिसने नाजिल किया वो भी बेमिसाल, जिस पे नाजिल हुआ वो भी बेमिसाल, और जो किताब नाजिल हुई वो भी बेमिसाल। लेकिन उस कुरान का उन्वान है इंसान। कुरान का सिर्फ एक ही उन्वान है जिसे इंसान कहते हैं। कुरान ने इंसानियत की दावत दी, सबसे पहले इंसानियत की। इसलिए कि इंसान के बारे में किसी ने कहा कि इंसान बंदर से पैदा होने वाला एक अजूबा है। किसी ने कहा इंसान पहले बंदर था, फिर तरक्की करते करते वह इंसान हो गया। हम कहते हैं अगर इंसान बंदर से इंसान बना है तो आज इंसान से कुछ और क्यों नहीं बन जाता? जब तरक्की करके इंसान बंदर से इंसान बना तब तरक्की करके इंसान कुछ और नहीं बन जाता? इसकी शक्ल क्यों नहीं बदलती? हजारों साल से इंसान तो आखिर जी रहा है, फिर ये क्या बात है? तो लोग इंसान की तौहीन करते रहे, खुद इंसान होकर इंसानियत पर सवालिया निशान खड़ा करते रहे। लेकिन कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसने इंसान की असल छवि को, असल तस्वीर को यूं पेश किया कि मेरा अल्लाह फरमाता है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ने 4 कस्में उठाई। कितनी कस्में? 4 कस्में। पहली बात, वो बगैर कसम के कोई बात कहे तो भी उसकी बात मानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि कहने वाला खुदा है, रब है। और अगर वो एक ही कसम उठाकर बात कहे तो भी बात बड़ी वजनी और कीमती हो जाती है। लेकिन मेरा रब, मेरा अल्लाह जब इंसान की शान बयान करता है तो एक नहीं बल्कि 4 कस्में उठाता है। और वो 4 कस्में भी कौन कौन सी? वत्तीन, ऐ इब्राहिम तेरे शहर की कसम। वत्तीन, ऐ मेरे पैगंबर इब्राहिम तेरे शहर की कसम। वज़ैतून, वज़ैतून ऐ ईसा तेरे शहर की कसम। वतूर सीनीन, ऐ मूसा तेरे शहर की कसम और उस पहाड़ की कसम जिस पर तुझसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। वहाज़ल बलदिल अमीन, या मोहम्मद, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे महबूब तेरे शहर की कसम। 4 नबियों के शहर की कसम याद की। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। आप सोचेंगे कि वत्तीन से शहर इब्राहिम की कसम कैसे याद की जा रही है, वज़ैतून से शहर ईसा की कसम कैसे याद की जा रही है। यहां तो तीन और जैतून की बात की गई है, अंजीर और जैतून की बात की गई है। हम कहेंगे देखो कुछ शहर ऐसे होते हैं कि अगर उसका नाम न लिया जाए तो वो किसी अलामत से मशहूर होते हैं, किसी अलामती निशान से। जैसे अगर ये कहा जाए कि ताजमहल, जैसे ताजमहल कहेंगे तो ताजमहल कहने के बाद
आगरा का नाम लेने की जरूरत नहीं होगी। ताजमहल कहा, फौरन आगरा का नाम जहन में आ गया, क्योंकि गोया के आगरा की आबरू है ताजमहल। आगरा मशहूर है ताजमहल से, वरना आगरे की अहमियत क्या है। तो जैसे ही ताजमहल कहा, आगरा का नाम जहन के अंदर उभर आया, क्योंकि आबरूए आगरा का नाम है ताजमहल, निशान आगरा का नाम है ताजमहल, आगरा की पहचान का नाम है ताजमहल। तो जहां ताजमहल होगा वहां आगरा खुद ही आ जाएगा, खुद बखुद आगरा का तारुफ आ जाएगा। इसी तरह से बंबई की कुछ चीजें मशहूर है, उसका नाम ले लिया जाता है तो फौरी तौर पर बंबई का नाम आता है। जैसे जो है वो बाबे हिंद, जिसे आप गेट ऑफ इंडिया कहते हैं, अगर ये कह दिया जाए तो फौरी तौर पर बंबई का नाम जहन में आ जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें बंबई के हवाले से मशहूर है। इसी तरह से और भी शहरों की बात है। याद रखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस इलाके में पैदा हुए, उस इलाके के अंदर अंजीर पैदा होती थी और वहां की अंजीर बड़ी मशहूर है। इसी तरह हजरत ईसा जिस इलाके में पैदा हुए, उस इलाके का जैतून बड़ा कीमती और बड़ा मशहूर है। और तूरे सीनीन और हाजल बलदिल अमीन तो बिल्कुल जाहिर है। तो यूं किया जाता है कि कभी कभी किसी शहर का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि उसकी मशहूर अलामत को बयान किया जाता है। आखिर अंजीर इतनी अजीम कैसे हो गई कि उसकी कस्में याद की जा रही है? बात अंजीर की नहीं है, बात दरअसल नबियों के शहर की है। तो कसम याद की गई, ऐ इब्राहिम मेरे प्यारे खलील, तेरे शहर की कसम। ऐ ईसा मेरे प्यारे रूहुल्लाह, तेरे शहर की कसम। ऐ मूसा तेरे शहर की कसम, उस मकाम की कसम जहां तुझे बुला बुलाकर तेरे साथ प्यारी प्यारी बातें की गई, तेरे साथ कलाम किया गया और गुफ्तगू की गई। और ऐ प्यारे मोहम्मद अरबी, तेरे उस शहर की कसम जहां तुम चलते फिरते, वहां अजल बलदिल अमीन, तेरे अमन वाले शहर की कसम जहां तेरे कदम लगे हैं। आप गौर फरमाएं, आयतों का सियाक बता रहा है कि प्यारे प्यारे चार अजीम पैगंबर, जिनके मर्तबे सबसे अफजल मर्तबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, उनके बाद मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, और उनके बाद दोनों पैगंबरों का। उन चार अजीम पैगंबर, उन चार साहिबे किताब पैगंबर, उनकी कसम याद की जा रही है, उनके शहरों की कसम। शहर इब्राहिम की कसम, शहर ईसा की कसम, शहर मूसा की कसम, शहर महबूब की कसम। और चार कस्में बयान करने के बाद अब फिर असल उन्वान की तरफ आया है कुरान, और कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। इंसान को बंदर से अजूबा कहने वालों, इंसान को बंदर की पैदावार कहने वालों, इंसान को बंदर से तरक्की करके इंसान बनने वाला कहने वालों, ये सारे नजरियात गलत है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी सूरत पर पैदा किया है, हमने इंसान को अच्छी शक्ल पर पैदा किया है। हाँ, इंसान इतना मोहतरम है कि जब सूरज बनाया तो कुन कहकर, जब चांद बनाया कुन कहकर, सितारे बनाए कुन कहकर, सितारे बनाए कुन कहकर, जमीन बनाई कुन कहकर, फरिश्ते बनाए कुन कहकर, सारी मखलूक, अर्श बनाया कुन कहकर, फर्श बनाया कुन कहकर, तहतुस्सरा बनाए कुन कहकर, समुंदरों की तुगयानी कुन कहकर, दरियाओं की रवानी कुन कहकर, फूलों का तबस्सुम कुल कहकर, रातों की तारीकी कुन कहकर, सुबह का सवेरा कुन कहकर, अल्लाहु अकबर, दरख्तों को बनाया कुन कहकर, पत्तों को बनाया कुन कहकर, पत्तों को उगाया कुन कहकर, और फिर जो है वो जमीन के अंदर जो दाने बोए गए थे उनसे पौधे निकाले कुन कहकर। सारी मखलूक को, ये बड़े बड़े पहाड़ जो नजर आते हैं, इनको कुन कहकर के पैदा किया है, सब कुन कहकर बनाया। लेकिन इंसान, अल्लाह का तू इतना महबूब है कि जब तुझे बनाने की बारी आई तो तुझे कुन कहकर के एक लम्हे में पैदा नहीं किया, इंसान को कुन कहकर नहीं बनाया। अगर कुन कहता तो भी इंसान पैदा हो जाता, उसकी कुदरत है।
لیکن اس نے کن کہہ کر نہیں بنایا، بلکہ فرمایا خلقت بیدیہ، کہ ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھ سے، قدرت والے ہاتھ سے انسان کو پیدا کیا۔ جب ہاتھ کہے جاتے ہیں تو ہاتھ ہماری طرح نہیں، بلکہ اس کی قدرت والے ہاتھ، جیسا کہ اس کی شان ہے، اس کے ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے۔ کہا ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔